Hi guys, welcome to this video. इस वीडियो में हम सीखेंगे how to read an Aeon article. I am Prashant, the founder of Word Pandit and the Learning Inc. network. I'll take you through this process. There are a number of videos on Aeon and how to read the Aeon. This will be a slightly different video from everything else that is out there. You will realize this in a few minutes time, right? हमारा topic है flickering enlightenment. मैंने इस article का पहले ही PDF बना के रखा हुआ है so that we can annotate it and we have it here, right? So let's go through this article. We'll go through the first paragraph of this article because overall the article is 4,400 words long. We would need almost an hour and a half to cover that, but we'll cover the first paragraph. Through this, I will like to teach you the skills you require in order to read Aeon. How do you read it? How do you actually read it? What is it that you actually do? Right? So we'll cover all of that. And there is a micro lesson in history as well stored in this. So I'll begin with that micro lesson in history because that is what is going to make the difference. That is what is going to really make you understand this particular article, right? So let's get started with the article here. The Enlightenment is going through a dark time. The first thing that you notice in this particular case is Enlightenment is with a capital E. Here it's referring to a particular time period. In noun form, it is referring to a particular stage in human history. Now, I said there is going to be a lesson in history, and your lesson in history comes right at the start because without this, you do not understand the context of this particular article. तुम जो भी कुछ समझ रहे हो ऊपर ऊपर से समझ रहे हो, तुम्हारे को एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही. एनलाइटनमेंट का पीरियड, अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री का पीरियड देखो तो पहले क्लासिकल एंटिक्विटी था. क्लासिकल एंटिक्विटी के बाद 5th से रफली 14th 15th सेंचुरी तक वी हैड आवर मिडल एजेस, राइट. सो दिस वाज अ टाइम पीरियड. इनके अंदर एक टाइम पीरियड ये भी था 5th to 10th century तक, जो which were dark ages, right? This was a very particularly dark period of time in human mankind's history, right? इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा डॉगमास थे, बहुत ज़्यादा रिलीजन में बिलीफ था, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, उन सारी चीज़ों के ऊपर जोर था जो साइंस बैक्ड नहीं थी. और इस टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली ज़्यादा फ्लरिश नहीं करा, स्पेशली वो डार्क एजेस के टाइम पीरियड में mankind did not flourish or create anything new. Remember, one thing which is consistent with human beings is progress, right? So वो इस टाइम पीरियड पे नहीं हुआ. अब मिडिल एजेस के बाद इमीडिएटली बाद क्या फॉलो किया? सो रफली 14th से 17th सेंचुरी तक. अब रिमेंबर, ये ना टाइम पीरियड सारे ओवरलैप करेंगे, आपको क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं मिल सकती. ठीक है. वी हैड Renaissance, right? I'm writing it in short. Renaissance was rebirth. Rebirth of what? Rebirth of human potential, right? So इस टाइम पीरियड में ह्यूमन बींग्स ने डिस्कवर करा आर्ट, म्यूजिक, क्रिएटिविटी जो सब पहले थी, इनको रीडिस्कवर करा. ये ह्यूमन बींग्स किस किस फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या सिखा सकते हैं दुनिया को, और क्या चीजें क्रिएट और इनोवेट कर सकते हैं. सो यू हैड इन्वेंटर्स एंड फेमस पीपल लाइक लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो, ये सारे इसी टाइम पीरियड के हैं. सो 14th से 17th सेंचुरी में ये रीबर्थ लाए. रीबर्थ किसका? ह्यूमन पोटेंशियल का. जो नेगेटिविटी थी उसको छोड़ के हमने बोला कि अब हम पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट. और सेम टाइम पीरियड में 16th 17th सेंचुरी में वी ऑल्सो हैड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन. अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन में हुआ क्या? रिमेंबर, मिडिल एजेस में हमारा डॉगमा जो था वो बहुत ज़्यादा रिलीजन के साथ रिलेटेड था. रेनेसॉ में भी रिलीजन के साथ रिलेशनशिप था, इतना चैलेंज नहीं हुआ. साइंटिफिक रेवोल्यूशन में 16th-17th सेंचुरी में पहला मेजर चैलेंज आया रिलीजन को, जहां पे बोला गया कि डॉगमास को, है ना, जो रूल्स हैं, जो रिलीजन हमारे ऊपर रूल्स एनफोर्स कर रहा है, उनको साइड पे हटाया जाए और हमारे को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए चीज़ों का. थिंग्स नीड साइंटिफिक प्रूफ, साइंस नीड्स टू बी गिवन इट स्पेस. सो साइंस की अपनी बीइंग, अपनी स्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हुई. और इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद, इमीडिएटली बाद या साथ साथ कौन सा भी एज आया हमारे पास? एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट. सो यू कैन सी एवरीथिंग इज लिंक. मिडिल एजेस में नेगेटिविटी थी, फिर रीबर्थ हुई, फिर साइंस की ग्रोथ हुई, फिर उसके बाद साइंस की ग्रोथ होने के बाद हमारे पास आया एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट. अब इस एज ऑफ रीजन में क्या क्या आया? फंडामेंटल ह्यूमन, जैसे फंडामेंटल ह्यूमन फ्रीडम्स की बात होनी शुरू होगी, लिबर्टी ऑफ मैनकाइंड की शुरू होगी कि आपको लिबर्टी के मिलने चाहिए, आपको इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए. थिंकर सच एज थरो इस टाइम पीरियड में आए, जिन्होंने वो सिविल डिसोबीडियंस की अपनी एक मूवमेंट रन करी. ये सारी चीजें हुई और यहाँ पे बात हुई कि इंडिविजुअल्स को राइट्स मिलने चाहिए. और एक और बहुत बड़ी चीज हुई एज ऑफ रीजन और एनलाइटनमेंट में कि चर्च और स्टेट को, रिमेंबर, अब तक चर्च डोमिनेट करता था स्टेट की पॉलिसीज, सब कुछ चर्च से अप्रूव कराना पड़ता था.
चर्च और स्टेट को सेपरेट कर दिया जाए, गवर्नेंस में रिलीजन का कोई रोल नहीं है। सो सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द चर्च ऑल्सो हैपेंड ड्यूरिंग द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। रीजन और एनलाइटनमेंट में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों पे भी काम हुआ, जैसे हमारी इंडिविजुअल लिबर्टीज और फ्रीडम्स हैं वो इसी टाइम पीरियड पर डिफाइन होनी शुरू करी थी कि आदमी के पास राइट टू फ्री स्पीच है, आदमी के पास राइट टू फूड, राइट टू एक्सेप्ट डिफरेंट राइट्स दैट मैनकाइंड हैज। वो सारी चीज़ें डेवलप हुई, सारे थॉट प्रोसेस थिंकर्स ने बहुत कुछ सोचा, राइट। पर इस एनलाइटनमेंट का एक डार्क साइड भी है, वो अब डार्क साइड ये आर्टिकल हमें बताता है। अब हम एनलाइटनमेंट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसका एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस टाइम पीरियड के बाद, एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट में, जहां ह्यूमन बींग्स ने अपना, रिमेंबर, थॉट प्रोसेस हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन और एज ऑफ रीजन और एनलाइटनमेंट में आगे बढ़ा था, हमारा साइंस भी आगे बढ़ी थी, तो उसका डायरेक्ट आउटकम निकला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो द नेक्स्ट एज दैट वी हैड, जो हमने ह्यूमन बींग्स ने नई नॉलेज गेन करी थी उसके बेसिस पे हमने मशीन्स बनाई। सो वी हैड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आप 5th सेंचुरी से 19th सेंचुरी की हिस्ट्री का एक माइक्रो लेसन अब पढ़ चुके हैं और आपको अब बैकग्राउंड समझ आनी चाहिए कि हम क्या बात करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल के साथ। एक्चुअली द एनलाइटनमेंट इज गोइंग थ्रू अ डार्क टाइम। अब मुझे पता चलता है यार ये 17th एंड 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड को रेफर कर रहा है, उसके बारे में, मतलब उसका डार्क टाइम चल रहा है। उसका डार्क टाइम कैसे चल सकता है, वो तो निकल चुका है। दैट इज हाउ इट इज बीइंग डिस्कस्ड, हाउ इट इज बीइंग व्यूड। हिस्ट्री में हम चीजें सिर्फ अपने लेंस से देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, तो उसको देखने के एक डार्क टाइम है। क्रिटिकल रेस थ्योरिस्ट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द अटलांटिक, बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक विच इज अमेरिका एंड मेनलैंड यूरोप, राइट। दोनों रेस थ्योरिस्ट जो रेस और रेसिज्म पे काम करते हैं, क्रिटिकल रेस, आर फॉलोइंग द फिलोसोफर्स इमैनुअल एजे एंड चार्ल्स मिल्स इन होल्डिंग द एनलाइटनमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्न रेसिज्म। सो कहते हैं एनलाइटनमेंट का टाइम पीरियड रिस्पॉन्सिबल है मॉडर्न रेसिज्म के लिए। सो एनलाइटनमेंट का नेगेटिव वाला एस्पेक्ट कौन सा यहाँ पे कोरिलेट करा जा रहा है, एनलाइटनमेंट को कोरिलेट करा जा रहा है रेसिज्म से। इन द एज ऑफ द एम्पायर, द ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट Andrews says that it is time to stop revering dead white men such as Kant, Locke and Voltaire. Immanuel Kant की बात हो रही है, लॉक और वोल्टेयर ये लीडिंग फिलोसोफर्स ऑफ द टाइम है। कहते हैं इनको ना आप रिवियर करना बंद कर दो, ये डेड वाइट मैन है। यू शुड नॉट रिवियर देम, यू शुड नॉट वर्शिप देम। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, पर क्यों ना वर्शिप करें हम, अब उसका रीजन आगे आएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ ये बोला गया कि इनको वर्शिप मत करो। Last year, the University of Edinburgh, which is widely seen as having an outsized historic role in promulgating racist scientific theories. Promulgating होता है propagate करना, फैलाना। Outsized role मतलब बाकियों के कंपैरिजन में इनका रोल ज्यादा बड़ा था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा ने अपने टाइम पे रेसिस्ट साइंटिफिक थ्योरीज, जैसे एक रेसिस्ट साइंटिफिक थ्योरी है यूजेनिक्स की, कि जो हमारे ब्रेन्स होते हैं, ब्रेन्स का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है बिटवीन वाइट्स एंड कलर्ड पीपल। एंड कलर्ड पीपल वी हैव इंफीरियर ब्रेन स्ट्रक्चर फिजिकली, विच हैज बीन प्रूवन टू बी एब्सोल्युटली फॉल्स, राइट। सो ये भी एक थ्योरी थी, इसी टाइम पीरियड की थ्योरी थी ये यूजेनिक्स, राइट। इस टाइप की रेसिस्ट थ्योरीज की बात हो रही है। undertook an excoriating process of self examination. So ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस था, अपने आप को ही गाली देने वाला प्रोसेस था। उन्होंने सेल्फ एग्जामिनेशन करा, अपने आप की गलतियां निकाली, एंड पब्लिश्ड अ रेस रिव्यू दैट एक्नॉलेज्ड दैट लीडिंग थिंकर्स ऑफ द स्कॉटिश एनलाइटनमेंट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपोगेटिंग सम ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग आइडियाज इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंक्लूडिंग द आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटीज एग्जिस्ट ऑन अ हायरार्किकल लैडर फ्रॉम सैवेज टू सिविलाइज्ड, विद यूरोपियंस एट द टॉप। सो इन्होंने बोला कि यार हमारी जब ये हमने इन्होंने अपनी खुद की अपने आप को भी रिव्यू करा, इन्होंने देखा, सेल्फ एग्जामिनेशन करा, और इनका रोल है इसमें रेसिस्ट साइंटिफिक थ्योरीज फैलाने में। तो उन्होंने बोला यार ये तो स्कॉटिश एनलाइटनमेंट के जो लीडिंग थिंकर्स थे ना, इन्होंने प्रोपोगेट करे सम ऑफ द वर्स्ट आइडियाज इन ह्यूमन हिस्ट्री, जैसे कि हायरार्किकल लैडर, मतलब कि लोग एक हायरार्की में लगे हुए हैं, यू आर सुपीरियर ह्यूमन बींग्स, इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, सैवेज, हम बाकी सारे जो नॉन सिविलाइज्ड वर्ल्ड के हम सैवेजेस हैं, सपोजिंग पीपल इन अफ्रीका वर कॉल्ड सैवेजेस। और यूरोपियंस का काम क्या है, दे आर ऑन अ मिशन ऑफ सिविलाइजेशन, उनको सिविलाइज करने के मिशन पे है, स्लेवरी को जस्टिफाई करने के ये तरीके थे, विद यूरोपियंस एट द टॉप। सो इनकी बात हो रही है। सो इसका मतलब जो वाइट थिंकर्स पहले जिनकी बात हुई है वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, ये वो थिंकर्स है जिन्होंने वर्स्ट डैमेजिंग आइडियाज को प्रोपोगेट किया। द रिव्यू हाईलाइटेड द रोल ऑफ डेविड ह्यूम, who is a notorious footnote to the 1753 version of his essay on national characters, stated that non-white races are naturally inferior to the whites. So यहाँ देख सकते हैं डेविड ह्यूम एक थिंकर की बात हुई है, ये भी बहुत फेमस है, इनके भी बहुत काम बहुत सारी चीजों में फेमस है, बट ये इनका नेगेटिव है, इनके पॉजिटिव काम भी हैं।
वो कहते हैं नेचुरली इंफीरियर टू द वाइट्स था, ये हमारे जो नॉन वाइट रेसेस हैं। सो अब आप अगर इस पैसेज का मीनिंग देखना शुरू कर रहे हो तो एनलाइटनमेंट के थिंकर्स, उन्होंने कैसे प्रोपोगेट करी रेसेस साइंटिफिक थ्योरीज, कैसे उन्होंने ह्यूमन बींग्स को बोला कि अब हायरार्किकल लैडर है, सैवेज से सिविलाइज्ड है, यूरोपियंस एट द टॉप है, इन सारी चीज़ों की बात करी गई है इसमें। सो ये बताना चाहता है कि एनलाइटनमेंट के टाइम पीरियड में हुआ क्या, और इसको समझने के लिए तुम्हें ये टाइम रेफरेंस पता होना चाहिए, राइट, सोसाइटी का। इसके बाद नेक्स्ट आता है, द यूनिवर्सिटी एडमिट्स दैट इट हैज स्टिल बिक्वेस्ट्स टोटलिंग मेनी मिलियंस ऑफ पाउंड्स फ्रॉम डोनर्स लिंक्ड टू द स्लेव ट्रेड एंड अदर कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट्स। बिक्वेस्ट मतलब जो इनको मिली है, जो इनको सपोजिंग आपको मरने के बाद आपकी जो एस्टेट मिलती है, सिमिलरली इन लोगों को जो एस्टेट मिली है, एस्टेट में कोई मर गया, कोई फॉर्मर लॉर्ड बैरन, उनका इनको जो मिला, उनसे जो मिला मिलियंस ऑफ पाउंड्स डोनर से मिले, वो जो डोनर फैमिलीज हैं वो एक्चुअली स्लेव ट्रेड करती थी और कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट, कॉलोनाइजेशन करा। रिमेंबर, कॉलोनाइजेशन करने का, राइट, इंपीरियलिज्म का फंडा ही यही था कि हम नेचुरली इंफीरियर है वाइट्स के लिए और वाइट्स निकले सिविलाइजेशनल मिशन पे, राइट। और यहाँ पे उन्होंने चर्च को भी इंक्लूड करा था कि ये वर्क ऑफ गॉड है, राइट। सो ऐसे बोल के इन्होंने जस्टिफाई करा रेसिज्म को भी और कॉलोनियलिज्म को भी। At the same time, the city is embroiled in a long dispute over what to do with the statue of Henry Dundas. So अब ये सिटी, द सिटी ऑफ एडिनबरा, इसमें एक और डिबेट चल रहा है कि इस बंदे के साथ क्या करें। Who most historians hold responsible for delaying the progress of abolition through UK Parliament. अब अगर तुम्हें एबोलिशन का मतलब नहीं पता तो ये लाइन समझने में चैलेंज आएगा। एबोलिशन का मतलब क्या है? एबोलिशन यहाँ पे रेफर कर रही है अबॉलिशिंग द स्लेवरी लॉज। सो इस बंदे ने अपोज करा स्लेवरी लॉज को अबॉलिश करना, मतलब उसका हाथ किसमें था? इसने प्रमोट करी स्लेवरी को। सो अब इसका जो स्टैचू है उसको क्या करे? देखो, दुनिया में एक कैंसल कल्चर नाम की चीज चल रही है। उस कैंसल कल्चर में क्या हो रहा है? ऐसी सारी रेसिस्ट फिगर्स को कैंसिल करा जा रहा है, उनके स्टैचूज, उनकी पेंटिंग्स, उनके रेफरेंसेस, they are being cancelled out because they are saying that they were racist in nature, right? So यह भी उसी चीज को हाईलाइट करता है। So हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ एक्चुअली एनलाइटनमेंट के बारे में है, एनलाइटनमेंट का नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में है, उसने रेस और रेसिज्म को कैसे प्रमोट करा। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा ने एक सेल्फ करेक्टिव एक्सरसाइज ली जिसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, और उन्होंने खुद किया कि हमारा बहुत बड़ा रोल है, हमारे को फंडिंग भी मिली है, हमारे जो स्कॉटिश थिंकर्स थे वो भी रिस्पॉन्सिबल्स थे, हमने बहुत रेसिस्ट आइडियाज प्रोपोगेट किए हैं, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, राइट। और उनके पास उसका पैसा भी है। और इसके सेम टाइम पे एक और जो स्टैचू है उस सिटी में, वो भी इसको होल्ड, विच इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ एबोलिशन, उस जो बंदे ने रोकी वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर आप देखें पूरा का पूरा आर्टिकल किसके बारे में है, पूरा का पूरा ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था, ये एक्चुअली अंडरलाइन सेंटिमेंट इसमें रेस और रेसिज्म का है। अगर आपको इसको समराइज करना है अपनी लैंग्वेज में तो आप बोलोगे एनलाइटनमेंट रिस्पॉन्सिबल है रेस और रेसिज्म के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए, उसके मॉडर्न आइडियाज के बर्थ होने के लिए। इस एनलाइटनमेंट के पीरियड में बहुत सारे थिंकर्स ने, थिंकर्स के नाम इसीलिए लिए गए हैं, इंप्लाई करा गया कि इन थिंकर्स ने हेल्प करी इन थ्योरीज को पुश करने में, राइट। सो डायरेक्टली इन थिंकर्स की वजह से पुश करी गई। ये वाइट मैन थे, इनकी थिंकिंग, इनकी जो थॉट्स थे, दे वर रेसिस्ट इन नेचर एंड दे प्रमोटेड रेसिज्म। सो उस चीज को ये हाईलाइट करना चाहता है इन दिस पर्टिकुलर केस। सो ये इसका पैराग्राफ का मतलब था। अब इस इंफॉर्मेशन के ऊपर तुम बिल्ड अप ऑन कर सकते हो और तुम रेस्ट ऑफ द आर्टिकल पढ़ सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बोला था मैं तुम्हें स्किल बताऊंगा, इसमें वोकैबुलरी का स्किल नहीं है ना। सो जैसे अब आपने प्रोमलगेटिंग का वर्ड आ गया, आपने एक्सकोरिएटिंग का मीनिंग आ गया, आपका चीजों वर्ड्स के मीनिंग्स आ गए, नोटोरियस, फुटनोट, ये सारे तो वर्ड्स के मीनिंग है यार। इसमें आपको एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये एनलाइटनमेंट विद एन ई नाउन फॉर्म में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रेफर कर रहा है। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, राइट। ये आपको कब पता होगी? जब आप अपना नॉलेज बेस बिल्ड करोगे। Remember, how do you improve your reading or comprehension? Why do you think this was an easy passage for me? Because I had all this knowledge. I have studied all this. I have kept this in my knowledge bank, right? And this is what our
जो हमारा वर्ड पंडित का VRC कोर्स है, दिस इज व्हाट इट इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन, राइट? इंक्रीजिंग योर नॉलेज बेसिस। बिना नॉलेज बेस इंक्रीज करे तुम चीजें नहीं समझ सकते। अब एनलाइटनमेंट समझ आया, सारे आपको डिफरेंट जो हमारी स्टेजेस थी ह्यूमन मैनकाइंड की डेवलपमेंट वो समझ आई, फिर एनलाइटनमेंट के टाइम रेस और रेसिज्म से क्या रिलेशनशिप था वो समझ आया। ये सारी चीजें आपको, और एबोलिशन भी आपको पता होना चाहिए था क्या है एबोलिशन। यहाँ पे वर्ड ही नहीं है बट एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात हो रही है, राइट? सो ये सारी चीजें जब तुम्हें पता होंगी तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन इज दैट मच बेटर, राइट? यू अंडरस्टैंड इट दैट मच मोर। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज दीज वर्ड्स विल कीप स्टेयरिंग यू डाउन। सो आप इसको एनलाइटनमेंट को यू विल एक्चुअली, यू माइट एक्चुअली टेक इट एज कि ये तो यार एनलाइटनमेंट वर्ड है, ये तो जागृति की बात कर रहा है यार। किसी के एनलाइटनमेंट मतलब जाग जाने की बात हो रही है। ये जाग जाने की बात नहीं हो रही, ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट की बात हो रही है। सो इस तरीके से ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं। मेहनत का काम है, शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर। यू हैव टू पुट इन द हार्ड यार्ड्स। अपनी नॉलेज इंक्रीज करो, उससे कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज होगा। टाइम लगता है बट हो जाता है। और ये जो चीज़ है, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैंने बता दी, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बेसिक हिस्ट्री है, हमने स्कूल में भी पढ़ी है बट हम भूल चुके हैं। एक क्विक रिविजन एंड वी आर डन। और अब आपने आज ये चीज़ पढ़ ली, इसके प्लीज नोट्स बना लेना, राइट? नोट्स बना के रखना। अब ये सारे हिस्ट्री के पैसेजेस में कोई भी पैसेज जो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में आता है, जो ह्यूमन टाइम पीरियड्स की बात करता है, रेनेसॉन्स, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उन सब टाइम पीरियड्स के बारे में तुम अब सुन चुके हो। और तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। तुमने इन सब टाइम पीरियड्स के पास जाके, आज की डेट में बहुत ईजी है यार, जेमिनी को बोलो, चैट जीपीटी को बोलो, क्लॉड को बोलो कि तुम्हें ये सारे टाइम पीरियड समझा दे, तो समझ लो ना। और जब वो समझ जाओगे, इनके नोट्स बना लोगे, तो तुम्हारे पास पूरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, पूरी एक टाइमलाइन बन जाएगी। और ऐसी चीजें जब तुम्हारे को दोबारा आएंगी किसी और एऑन आर्टिकल में, तब तुम उनको समझ पाओगे। दिस इज हाउ यू रीड एऑन आर्टिकल्स। दिस इज एक्चुअली व्हाट इट मीन्स टू रीड एन एऑन आर्टिकल, द काइंड ऑफ knowledge that is required, what you bring to the table in order to understand the article. I hope you've understood the article in this particular case. अगर किसी को इस फर्स्ट पैराग्राफ से डाउट हो और सब्सिक्वेंट लाइंस में भी कोई डाउट्स हो, राइट? आप पूरा आर्टिकल पढ़ो, आपको इनके जो आर्टिकल में सब्सिक्वेंट लाइंस में डाउट्स हो तो आप पोस्ट करें एक कमेंट नीचे एंड आस्क मी फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर लाइन इन दिस मैनर, राइट? मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे आर्टिकल्स पढ़ो, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, इस तरीके से पढ़ने चाहिए, ऐसी नॉलेज लेके आओ। ब्रिंग दिस नॉलेज टू द टेबल, आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा कोर्स चाहिए जो इन चीज़ों पे काम करता है तो चेक आउट द वर्ड पंडित VRC कोर्स। वी हैव our anniversary offer running. It's a lifetime opportunity. It's the best possible offer that we've ever run in our lives. So you're getting it for next to nothing. आप absolutely, आपको almost free मिल रहा है कोर्स। तो जो नंबर दिया उस पर मैसेज करो, पूछो मेरी टीम को एंड दे विल रीच आउट टू यू। और वहाँ पे हमारे कोर्स में पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप है। यू स्टडी ओनली फ्रॉम मी। सो उस तरीके से आपको इन सब चीज़ों के बारे में बातें होती हैं और ऐसे धीरे 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 आपकी नॉलेज बढ़ाई जाती है। ये हम करते हैं, सिंपल सा फंडा है। नॉलेज बढ़ानी है, उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।